We were talking about the osmoregulation in terrestrial environment, and in that I have told you that the animals living on land, they have easy access to oxygen, but they are at great danger of dehydration. That is, because they are exposed to the environment, the water losses can be increased. And if the water is lost, then the osmotic pressure or the osmoregulation of the organism is also in danger, or it is also compromised. As I have already told you that the loss of iron and water may occur through the skin. Loss of iron and water can also be caused by the fecal and the urinary deposition. Small loss of water and iron may be associated with reproduction and other losses from injury, or if we are talking about insect, then during the process of molting, from secretions such as slime, mucus, etc. As dehydration is a serious problem on terrestrial life, and therefore those depend upon the selection of suitable moist habitat, except arthropod and vertebrates are terrestrial only in technical term. For example, earthworm require more moist environment in soil for its survival and is susceptible to desiccation when exposed to open environment because its body can resist very little of water loss. जब हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि ज़मीन पे रहने वाले एनिमल्स में वाटर का लॉस और आयरन का लॉस कई प्रकार से होता है, जैसे कि पसीने में, रेस्पिरेशन के द्वारा, यूरिन के द्वारा या फीकल मैटर में। इसके अलावा इंसेक्ट के अंदर जब मोल्टिंग होती है तब, या जब एनिमल अपना म्यूकस सेक्रीशन करता है, स्लाइम का सेक्रीशन करता है, इन सभी केसेस में वाटर और आयंस का शरीर से ह्रास होता है। डिहाइड्रेशन ज़मीन पे रहने वाले एनिमल्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है, स्पेशली अर्थवर्म जैसे मॉइस्ट स्किन वाले जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनके स्किन से और या उनके शरीर से मॉइस्चर का ह्रास बहुत ही जल्दी और आसानी से होता है। ऑस्मो रेगुलेशन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कई ऑर्गन के द्वारा होता है। यहाँ पर एपिथीलिया के द्वारा ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में बताया है। ये डायग्राम द्वारा किस प्रकार से शरीर के अंदर वाटर और आयरन का रेगुलेशन किया जाता है, इसके बारे में बताया है। नाइट्रोजन वेस्ट का किस प्रकार से
एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में उससे निजात पाई जाती है, छुटकारा पाया जाता है, इसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में, जैसे कि moist skin animal, earthworm. Moist In the moist skinned animal, evaporation is high and rate of evaporation is determined by the transfer of water vapor into the surrounding air. It is described as the vapor limited system in which the resistance to evaporation lies in water transport in the air. Earthworm, when kept in dry air, loses weight very rapidly due to loss of water and dies. This is due to dehydration. जैसे हम शरीर से पानी के ह्रास की बात कर रहे थे, तो अर्थवर्म जिसकी स्किन मॉइस्ट होती है, यदि उसे ओपन खुले में रखा जाता है जहाँ पर एयर शुष्क होती है, ऐसी जगहों पर देखा गया है कि अर्थवर्म के शरीर से पानी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और अर्थवर्म की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से स्नेल्स यानी मोलस्का फाइलम में आने वाले ये जीव, स्नेल और स्लग, इनके पास भी जो स्किन है वो सॉफ्ट और मॉइस्ट होती है और इनके द्वारा मॉइस्चर यानी वाटर का जो ह्रास होता है वह भी बहुत ज़्यादा अधिक होता है। और अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ये जीव भी ऐसे पर्यावरण में रहते हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी हो, जहाँ पर हवा में आर्द्रता मौजूद हो। स्नेल एंड स्लग आर ऑल्सो हैविंग मॉइस्ट स्किन and evaporation through their skin is also very high. A naked slug depends upon the humidity of their habitat and they are active after rain at night when the relative humidity is high. Otherwise, they withdraw to and remain in the microhabitat where the humidity is comparatively high. Snail, in contrast, carries a water impermeable shell with them into which they withdraw. फाइलम मोलस्का के एनिमल जैसे स्नेल और स्लग की स्किन भी मॉइस्ट होती है, सॉफ्ट होती है, और यदि उन्हें ड्राई एयर में रखा जाए तो उनके शरीर से, स्किन से भी मॉइस्चर यानी वाटर का ह्रास होगा। स्लग अपने इस डिहाइड्रेशन से बचने के लिए रात में बाहर आता है और उस समय एक्टिव होता है जब वर्षा ऋतु होती है। अदरवाइज़ वो बहुत ही इनएक्टिव लाइफ जीता है और अपने आप को उस एनवायरनमेंट में छिपा लेता है जहाँ पर उसे ह्यूमिडिटी पर्याप्त मात्रा में मिले। स्नेल, जैसे हम जानते हैं, उसके ऊपर एक कवच होता है। यदि एनवायरनमेंट में शुष्कता ज़्यादा है तो अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए वह अपने कवच यानी शेल के अंदर चले जाता है। टेरेस्ट्रियल स्नेल इज़ इनएक्टिव और एस्टिवेट and has an excellent barrier to water loss. और जो स्नेल्स हैं वह गर्मियों में एस्टिवेट करते हैं यानी कि समर स्लीप में चले जाते हैं, अपने आप को अपने शेल के अंदर छिपा लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, जिससे इनका वाटर लॉस जो है वो कम से कम हो। मॉइस्ट स्किन वाले कुछ जीव जैसे कि फ्रॉग्स और दूसरे रेप्टाइल्स में भी वाटर का लॉस या डिहाइड्रेशन होने की संभावना होती है। अ फ्रॉग हैज़ अ मॉइस्ट एंड कूल स्किन एंड
The rate of evaporation from skin of the frog is similar to that of an earthworm. The magnitude of evaporation is of the same magnitude as evaporation from a tree free water surface, and amphibian skin does not exhibit significant barrier to evaporation. फ्रॉग की स्किन भी मॉइस्ट होती है और यदि इन्हें शुष्क एनवायरनमेंट में रखा जाए तो इनके शरीर से होने वाले जो मॉइस्चर का नुकसान है वह अर्थवर्म के स्किन से होने वाले मॉइस्चर के नुकसान के बराबर होता है। हमने सबसे पहले अर्थवर्म की बात की जो कि फाइलम एनिलीडा के सदस्य थे। फिर हमने स्नेल और स्लग की बात की जो फाइलम मोलस्का के सदस्य थे। फाइलम आर्थ्रोपोड के सदस्य टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहने के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं और इनमें कई सारे अनुकूलन यानी अडेप्टेशन देखने को मिलते हैं जिसके द्वारा इनके शरीर से वाटर का और आयंस का नुकसान या ह्रास नहीं होता है। और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ही ये है कि एनिमल के द्वारा वह विधि को अपनाया जाए जिसके द्वारा उनके शरीर में वाटर और आयन का बैलेंस बना रहता है। The most successful terrestrial animal on earth are found among the arthropods, which comprises of members from class Insecta and Crustacea. The insect, crustacean and other animal characterized by jointed leg, rigid exoskeleton. Arthropods living on land are usually covered by dense and stiff cuticle of very complex structure with complicated waterproofing properties, whereas land tetrapod bear thick outer layer of dead skin cell called the keratinized layer. Insects are more numerous with respect to a number of species. Insect and arachnids are primarily terrestrial and are adapted for terrestrial life and respiration through air. आर्थ्रोपोड्स के सदस्य जैसे इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस में एक्सोस्केलेटन की उपस्थिति के कारण इन्हें एक ऐसी प्रॉपर्टी एक ऐसी सुविधा मिलती है जो कि इनके स्किन को वाटर प्रूफिंग देती है यानी पानी इनके स्किन के अंदर नहीं जा सकता। सिमिलरली इनके स्किन के द्वारा वाटर या मॉइस्चर का ह्रास भी नहीं हो सकता। इंसेक्ट्स और अरैक्निड्स के अंदर स्पाइडर्स आते हैं। मकोड़े जो होते हैं स्पाइडर्स को हम अरैक्निड के अंदर इंक्लूड करते हैं और स्कॉर्पियंस वगैरह। तो इंसेक्ट्स एंड अरैक्निड्स आर प्राइमरीली टेरेस्ट्रियल, ये सबसे पहले उत्पन्न हुए पूर्णतः ज़मीन पे रहने वाले जीव हैं। टोटली टेरेस्ट्रियल एंड आर अडेप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ एंड रेस्पिरेशन थ्रू एयर, और यह ज़मीन पे रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होते हैं। Only a small number has secondarily invaded the fresh water and no marine forms are found in these two classes. इन दोनों में इंसेक्ट और एरेक्निड में कुछ प्रकार है जो द्वितीय रूप से फ्रेश वाटर में अपना जो जीवन है उसको व्यतीत करने के लिए जाता है, लेकिन इनमें से इंसेक्ट और एरेक्निड में मरीन प्रकार के जंतु नहीं पाए जाते हैं। Two additional class, Diplopoda and Chilopoda, are also terrestrial. In contrast, most of the crustaceans are aquatic. इनमें दो और क्लास डिप्लोपोडा जिसमें मिलीपीड्स आते हैं
और चीलोपोडा जिसमें सेंटीपीड्स आते हैं, ये दो और क्लासेस के सदस्य भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। लेकिन क्लास क्रस्टेशिया में पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं, अधिकतर वह एक्वेटिक हैं, यानी कि जलीय जंतु हैं। कुछ फ्रेश वाटर में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और कुछ मरीन वाटर में। Compared with that of insect, the cuticle of insect is covered by thin layer of wax which greatly reduces the water loss. और यदि हम इंसेक्ट के स्किन की बात करें या क्यूटिकल की बात करें, तो उनके क्यूटिकल में एक थिन वैक्स की लेयर होती है जो इनमें से पानी के ह्रास को बचाती है। Terrestrial insect living in a dry habitat has very limited water intake, and all losses must be reduced to such a level that their sum in long run does not exceed the total gain. Insects जो स्थलीय जीवन व्यतीत करते हैं, ये ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, यानी इनका आवास स्थान जो है वो अधिकतर ड्राई होता है। और इन इंसेक्ट्स में पानी की मात्रा जो ली जाती है वह बहुत ही कम होती है। इस वजह से इनके द्वारा पानी का जो नुकसान है, चाहे वो मल के रूप में हो या रेस्पिरेशन में हो, वह बहुत ही मिनिमम होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, जिससे कि इनके द्वारा प्राप्त जो पानी है वो इनके द्वारा ह्रासित पानी से कम ना पड़ जाए। Many insects with terrestrial habitat can survive with the loss of 30% to 50% loss of body water, whereas anurans such as toad and frog living in same environment can survive with 30% loss of body water. यदि हम इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट अपने शरीर से 30 से 50% पानी के नुकसान को सह सकता है, परंतु एम्फीबियंस जैसे कि टोड और फ्रॉग, ये यदि उसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जिसमें इंसेक्ट रह रहा है, तो मात्र 30% लॉस ऑफ वाटर ही बर्दाश्त कर सकते हैं। वाटर लॉस, मेम्ब्रेन permeability. Water loss takes place both from respiratory organ and general body surface. The respiratory organ of insect and vertebrates differ greatly in structure and function. किस प्रकार से एक टेरेस्ट्रियल एनिमल के शरीर से पानी का ह्रास होता है? वाटर का लॉस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स द्वारा व बॉडी सरफेस से होता है। इंसेक्ट और वर्टिब्रेट्स के अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बात करें तो उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन भिन्न होता है। The lining of vertebrate lungs is always moist. The respiratory air is saturated with water vapor, and the water loss from respiratory tract is substantial.
The respiratory organ of insect consists of tubes lined with chitin, and only finest branches of these are relatively permeable to water. In most xeric insect and arachnid, the presence of a hard, dry, waxy epicuticle ensure much slower water loss when compared to the same sized crustacean with similar cuticle design. The animal regulate the solute content of the body fluid that bathe their cell. Transport epithelia are the epithelial cells that are specialized for moving solute in specific direction. They are arranged in complex tubular network. For example, the nasal gland of marine birds, which remove excess of sodium chloride from their blood. The amniotic vertebrates such as reptile, birds and mammal exhibit more impermeable skin layer lacking respiratory function to compromise their osmoregulatory function. Their skin is formed from several layers of dead keratinized cells lying over the living epidermis. Sometime they thickened into plates and scale in case of reptile, or it is modified into hair or feather in case of mammal and bird respectively. In mammalian skin, lipid is present in a dispersed fashion, whereas in reptile skin, the stratum corneum specifically has high content of phospholipid. Due to all the above adaptation of the skin layer, these animals are less susceptible to water loss as compared to fishes and amphibians. In spite of these adaptation, these vertebrates still do not reach the extent of waterproofing present in the arthropods. The water loss through cutaneous layer in some of these group of animals can be altered more significantly through planned and controlled loss related to cooling, the phenomena of sweating. Mammals have lower water loss from their sweat glands superimposed to the loss through rest of the skin, with a more rapid loss that occurred during exercise in hot climate. हम एनिमल्स के शरीर से होने वाले पानी के ह्रास की जब बात करते हैं तो वर्टेब्रेट्स जैसे कि रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इनके स्किन में स्पेशलाइज्ड थिकनिंग या स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन है। जैसे कि अगर हम मैमल की बात करें तो इनके स्किन के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर डेड स्किन की लेयर होती है जो कि केराटिनाइज्ड होती है, जो पानी के ह्रास को रोकती है। इसके अलावा बर्ड्स और रेप्टाइल्स में स्केल की उपस्थिति होती है जो कि पानी के नुकसान को रोकती है। बर्ड्स में स्केल्स मॉडिफाई होकर फेदर यानी पंख का निर्माण करते हैं जो भी पानी के ह्रास को रोकती है।
इसके अलावा मैमेलियन स्किन में लिपिड उपस्थित होता है जो कि पानी के ह्रास को रोकता है। रेप्टाइल के स्किन में स्ट्रेटम कॉर्नियम में फॉस्फोलिपिड की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार से इन सभी एनिमल्स के अंदर से होने वाले पानी के ह्रास में हम रेगुलेशन, नियमन हम देखते हैं। पानी का लॉस अगर हम बात करें तो फीसेस और यूरिन से भी होती है। इंसेक्ट वाटर लॉस इन फीसीज एंड यूरिन, मल और मूत्र द्वारा पानी का ह्रास। Insect eliminate their feces and urine through the same opening, the anus. Urine is formed by malpighian tubule which open into the posterior part of the gut. हम यह जानते हैं कि इंसेक्ट के अंदर एक्सक्रीशन मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है और यह मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हाइंड गट, इंसेक्ट के एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो वह 3 भागों में डिवाइडेड है, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। तो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स जिनकी बहुत संख्या होती है, 300 से 500 तक की ये ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि हाइंड गट और मिड गट के मार्जिन में प्रेजेंट होते हैं और इनके द्वारा नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड के रूप में हाइंड गट में दे दिया जाता है और वहाँ से मल के साथ, अनडाइजेस्टेड फूड के साथ ये नाइट्रोजनस वेस्ट भी शरीर के बाहर निकल जाता है। पानी में रहने वाले जीवों में ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है अमोनिया के रूप में बाहर निकलता है। The type and quantity of an animal waste product may greatly affect its water balance. क्योंकि पानी में रहने वाले जीवों को पानी बहुत अधिकता से उपलब्ध होता है, अतः जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनता है वह अमोनिया के रूप में ही शरीर के बाहर त्याग दिया जाता है। क्योंकि अमोनिया पानी में घुलनशील है अतः वह आसानी से पानी में घुल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एनिमल के जो वेस्ट है, एक्सक्रीशन जो है, वो किस प्रकार का है और कितनी मात्रा में वो त्यागा जाएगा, वो उस एनिमल के शरीर के ऑस्मो रेगुलेशन यानी वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है। यानी वाटर बैलेंस इस बात पे डिपेंड करता है कि एनिमल द्वारा कौन से प्रकार का मल, कितनी क्वांटिटी में मल त्यागा जा रहा है। The type and quantity of animal waste product affect its water balance या osmo regulation. Among the most significant waste are nitrogenous breakdown product of proteins and nucleic acid. Some animals convert toxic ammonia to less toxic compound prior to excretion. ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट पानी में रहने वाले एनिमल्स यानी फिशेस के द्वारा अमोनिया के रूप में, मैमल्स, एम्फीबियंस, शार्क और बोनी फिश में यह नाइट्रोजन वेस्ट जो है यह यूरिया के रूप में त्यागा जाता है। और ऐसे जीव जहाँ पर जिन्हें पानी बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, ऐसे एनिमल्स जिसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स आते हैं, ये अपने नाइट्रोजन वेस्ट को यूरिक एसिड के रूप में एक्सक्रीट करते हैं।
तो हम ये कह सकते हैं कि इंसेक्ट एलिमिनेट देयर फीसीज एंड यूरिन थ्रू द सेम ओपनिंग, द एनस. Urine is formed by malpighian tubule which open into posterior part of the gut. Liquid urine as well as fecal material from intestine enter the rectum where water reabsorption takes place. If excretory product instead of being eliminated in the urine are withheld in the body, no water is expended for their excretion because uric acid is highly insoluble compound. Its retention in the body is in fact a feasible approach to the problem of excretion, and deposition of uric acid in various parts of insect body seems to be a regular feature. For example, in several species of cockroach, as much as 10% of the total dry weight of body may be uric acid. इंसेक्ट जिनको पानी बहुत ज़्यादा अधिकता से उपलब्ध नहीं होता है, ये अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी अमोनिया या नाइट्रोजन वेस्ट को यूरिन के रूप में त्यागता है, परंतु यह नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड जो कि पानी में इनसॉल्युबल है, इस रूप में यूरिक एसिड के रूप में अपने बॉडी में यह रोक लेता है. यूरिक एसिड अपने शरीर के वेरियस पार्ट्स में डिपॉजिट कर सकता है, जैसे कि अपने एक्सोस्केलेटन में. और यदि कॉकरोच की हम बॉडी वेट देखें तो यूरिक एसिड का डिपॉजिशन लगभग 10% तक होता है. 10% ऑफ द टोटल ड्राई वेट ऑफ द बॉडी, शरीर का जो टोटल ड्राई वेट है उसमें 10% जो है वह यूरिक एसिड होता है. An insect that live in very dry surrounding withdraw water from its rectal content unless the fecal pellet are extremely dry. और कुछ प्रकार के इंसेक्ट जो बहुत ही शुष्क वातावरण में रहते हैं, यह पानी का एब्जॉर्प्शन अपने रेक्टम में कर देते हैं. रेक्टम द्वारा पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये छोटी छोटी गुलिका के रूप में शरीर में स्टोर की जाती है. जैसे मैंने आपको बताया, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये अमोनिया के रूप में, यूरिया के रूप में और यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जित किया जाता है. These differ in toxicity and the energy cost of producing them. अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की जो टॉक्सिसिटी है वो अलग अलग होती है. अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, फिर यूरिया और फिर यूरिक एसिड बिल्कुल कम होता है. ये अपनी टॉक्सिसिटी और इन्हें बनाने में खर्च हुई एनर्जी पे डिपेंड करते हैं. अमोनिया को बनाने में ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि यूरिया और यूरिक एसिड में एनर्जी की खपत होती है. Animal that excrete nitrogenous waste as ammonia need excess of water to excrete them. They release ammonia across the whole body surface or through gills. Urea, the liver of the mammal and most adult amphibian convert ammonia to less toxic urea. The circulatory system carries urea to kidney where it is excreted. Conversion of ammonia to urea is energetically expensive. यानी अमोनिया का यूरिया में कन्वर्जन एक्सपेंसिव होता है. The excretion of urea require less water than ammonia. Uric acid. Insect, land snail and many reptiles including bird excrete uric acid. Uric acid is relatively non-toxic. यह बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होता है. अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है.
यूरिया उससे थोड़ा कम और यूरिक एसिड बिल्कुल नॉन टॉक्सिक होता है. इट कैन बी secreted as paste with little water loss. Uric acid is more energetically expensive to produce than यूरिया. और यूरिक एसिड का प्रोडक्शन और भी ज़्यादा ऊर्जा की खपत करता है. Excretory process.